Yes, I hope all of you can hear me. Okay, so we can start with the next topic in this chapter, that is alternating current. Yes, so here in this chapter, last time we have seen the concepts of the RMS current and RMS EMF, right? And the mean current and mean EMF. And we already seen that the RMS value of or mean value of current, I average, we can say, it happens to be actually I naught upon pi by 2, correct hai? And the mean value of EMF, RMS EMF, mean value of EMF happens to be actually E naught upon pi by 2. That is the average values, correct hai? Yes. And also we have seen that the RMS value of current happens to be actually I naught upon root 2, correct hai? I naught upon root 2. And here the RMS value of EMF actually happens to be E naught upon root 2. These values are taken as a reference for the effective values. ठीक है ना? ये RMS value of current and RMS value of EMF is called actually the effective value of current and EMF. क्योंकि देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर मान लो कि एक सर्किट है या एक सपोज एसी सोर्स है, ठीक है? अभी इस एसी सोर्स के द्वारा अगर हम करंट पास करेंगे और एक हीटर के अंदर से करंट पास कर रहे हैं सपोज, ठीक है? ये हीटर है और इस हीटर को हमने किसी वाटर के कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। ये वाटर का कंटेनर है जिसके अंदर ये हीटर हीट पैदा कर रहा है, ठीक है? एक लॉजिकल बात अभी ये है कि इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी कि व्हेन द करंट एसी करंट स्टार्ट्स, मतलब ऑलरेडी करंट जब स्टार्ट होता है तो इट रिमेन्स पॉजिटिव फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल and then it becomes negative for the next half cycle and again becomes positive for the next half cycle and becomes negative alternately, positive and negative alternately in this way. Okay, so in this first cycle the current is changing at every instant, no doubt, but what happens is when this current will just flow from left to right like this, it will generate some heat in this container, in this water, correct है? तो कुछ ना कुछ हीट वो पैदा करेगा जरूर, बट अभी जब ये करंट रिवर्स हो जाएगा, सो व्हेन दिस करंट विल जस्ट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, देन इन दैट सेकंड साइकिल नेगेटिव साइकिल उसको बोलेंगे, अगेन द हीट विल बी जनरेटेड इन द सेम सर्किट, राइट? एंड दैट हीट विल जस्ट गेट अडप्ट टुगेदर विद द heat generated in this first cycle, right? And again when the polarity is reversed, when the direction of current will get reversed, again the heat will be generated in the third positive cycle also, and that heat will just get add up with the heat generated in the previous two cycles. And in this case, in this way we can just clearly see that the heat will be generated in each and every half cycle, करेक्ट है? ईच एंड एवरी हाफ साइकिल, हर साइकिल के अंदर, हर साइकिल बाय साइकिल क्या होगा, हीट जनरेट होता ही रहेगा, एंड दिस हीट विल बी कलेक्टेड इन दिस वाटर और इन दिस कंटेनर, एंड दैट हीट विल बी टेकन फॉर द रेफरेंस फॉर फाइंडिंग द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट. तो अभी हमको अगर सपोज एक आधे घंटे के अंदर इस सर्किट के अंदर जितना भी हीट पैदा हो गया, उतना ही हीट आधे घंटे में इसी कंटेनर के अंदर पैदा करने के लिए कितना कांस्टेंट करंट रिक्वायर्ड था, वो निकालना माना एक तरह से आरएमएस करंट निकालना है. या तो ठीक से व्हाट इज आरएमएस करंट और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट? इफ रूट मीन स्क्वायर करंट इज दैट कांस्टेंट करंट which produces the same amount of heat in the same circuit in a same time as it is produced by the alternating current in a given circuit in a given time. I'll repeat again. What is the definition of RMS current? RMS current or root mean square value of current is that constant current which produces the same amount of heat in the same circuit in the same time as it is produced by this alternating current in a given circuit in a given time. मतलब किस कोई भी alternating current एक given circuit के अंदर given time के अंदर जितना भी heat पैदा करता है, उतना ही heat उसी circuit के अंदर उसी time के अंदर पैदा करने वाला constant current, that is called as the simply RMS current.
इसको हम एक अलग ढंग से भी देख सकते हैं आराम से। देखो ये जो हीट पैदा होने वाला है, तो हीट का जो कंसेप्ट है, तो वो हम जानते हैं कि एरिया के साथ ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर सोचो सोचो कि अगर मान लो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया ऑल्टरनेटिंग करंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सपोज, एंड इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ओके, ये उसका ग्राफ हो गया। ठीक है, अभी अगर सोचो कि हमने ये एरिया अगर ढूंढ के निकाला, वी फाइंड दिस एरिया हियर, ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे, उसका एरिया अगर मैंने ढूंढ के निकाला, ठीक है, अभी इतना ही एरिया मुझे अगर रीअरेंज करना है, ठीक है, आई वांट टू रीअरेंज दिस एरिया एंड सपोज आई वांट टू टेक द गिव द शेप ऑफ रेक्टेंगल टू दिस एरिया। ये एरिया जितना भी हमको मिल रहा है, उस एरिया को मुझे अभी रेक्टेंगल का शेप देना है, रेक्टेंगल का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जरूर ये जो रेक्टेंगल का शेप देने के लिए ये ऐसा कुछ तो भी उसका हाइट रखना पड़ेगा। टाइम इंटरवल सेम चाहिए हमको, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल के अंदर हमको सपोज ये रेक्टेंगल के शेप वाला जो एरिया है, उसका एरिया और इस पूरे का एरिया सेम होना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे केस में ये एरिया, दोनों तरफ एरिया हमको सेम मिलने वाले हैं, सिर्फ ये है कि ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको सपोज ये पूरा एरिया जितना भी बनता है, उतना एरिया अगर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म में अगर ड्रॉ कर दिया, तो उसका जो भी हाइट होगा, वो हाइट एक्चुअली आरएमएस करंट कहलाएगा। इसे भी तुम समझ सकते हो अच्छी तरह से, व्हाट इज एग्जैक्टली द आरएमएस करंट। सो वी कैन जस्ट से दिस एरिया, अगर रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो वो रेक्टेंगल कुछ इस तरह से आएगा, देखो ठीक से। तो उस रेक्टेंगल का जो भी हाइट रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअली ये रेक्टेंगल है, देखो इस रेक्टेंगल का जो भी हाइट हमको मिलता है, उसको हम बोलेंगे आई आर एम एस। रिमेंबर, आई आर एम एस, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट। रिमेंबर, whenever the current is alternating, its effective value is always used, and that effective value is considered to be the same value whose area is going to be the same. Area under the curve is going to be the same. इसका जितना भी एरिया होगा, उतना ही एरिया इसका भी होना चाहिए, ऐसा जो हमको मिलता है, तो उसको हम बोल सकते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। ओके, सो अगर सपोज हम देखते हैं खाली से तीसरा नंबर। So accordingly, now we can just see that the RMS current is that current which produces the same amount of heat that is produced by this alternating current in the circuit, ठीक है। अगर सपोज हमने यहाँ पे एक डीसी सर्किट अप्लाई कर दिया, डीसी सोर्स अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो और उसी सोर्स, उसी जो हीटर के अंदर अगर हमने ये डीसी सोर्स अप्लाई कर दिया, उसी कंटेनर के अंदर उसको डाल दिया, और उतने ही टाइम के लिए एक करंट फ्लो किया, डीसी करंट फ्लो किया, तो ये जो डीसी करंट है वो रहने वाला है आई आर एम एस। और एट द सेम टाइम ये जो है, इसका वैल्यू, आई का जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, जो कि आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्मूला से दिया जाता है। तो इन ऑर्डर टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन दिस आई एंड आई आर एम एस, या आई नॉट एंड आई आर एम एस, व्हाट विल हैव टू डू इज, तो यहाँ पे इस सर्किट के अंदर टी इतने टाइम के अंदर अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस आर मान लिया जाए, तो कितना हीट पैदा होगा बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट। तो हीट प्रोड्यूस्ड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, करेक्ट है। तो अभी चलो एक साइकिल की अगर बात करते हैं, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड विल बी कैपिटल टी, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू कैपिटल टी। ये बताइए समझ में ठीक से, दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन वन साइकिल, फुल साइकिल, ओके। तो बट दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस RMS करंट which is a DC current which is a constant, that's why we have used this formula here। ये सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, जूल्स लॉ जिसको बोलते हैं, तो वो यूज करके हमने ये हीट निकाल लिया, ठीक है। अभी दूसरी तरफ हम यहाँ पे इस सर्किट के अंदर जो हीट पैदा होता है एक फुल साइकिल के अंदर, वो हम निकालने के लिए ट्राई करेंगे। तो ऑन द अदर हैंड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और हीट प्रोड्यूस्ड here in this circuit by this variable current
कैन बी एक्चुअली फाउंड आउट टू बी, क्योंकि यहाँ पे करंट तो वेरिएबल है और अलग अलग इंस्टेंट्स पे अलग अलग करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है I स्क्वायर आर टी, ये इसके बदले हमको इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर आर डी टी यूज करना पड़ेगा। समझा क्या ठीक से? तो दिस विल बी द फॉर्मूला यूज टू बी यूज्ड हियर इन केस ऑफ द वेरिएबल करंट। सो हीट कैन बी ऑब्टेन टू बी इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर आर इंटू डी टी फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे एक तरफ हमको ये हीट मिल रहा है और एक तरफ हमको यहाँ पे ये हीट मिल रहा है, बट वी वांट दैट दिस टू हीट्स ऑब्टेन्ड हियर मस्ट बी इक्वल। ये दोनों हीट्स अगर इक्वल होने हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू कैपिटल टी मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। करेक्ट है? सो दैट वी कैन जस्ट टेक दिस आर कॉन्स्टेंट आउट and hence we can just get that IRMS square into R into capital T is actually going to be, R is constant and we are left with I square into dt as it is here. So that R gets cancelled from both sides, and if we just transfer this T in the denominator in the other side, then we will be able to get that IRMS square, which is equal to 1 upon T into integration of I square into dt. Correct है? Which is the definition of RMS current actually, which you have seen last time, and this integration is to be carried out from 0 to capital T. तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू, यहाँ पे I का जो वैल्यू हमारे पास है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो अगर डाल देंगे यहाँ पे फ्रॉम 0 टू टी, तो हमको इंटीग्रेशन इसका मिलेगा 0 टू कैपिटल T ऑफ I नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, and that is from 0 to capital T, where I naught square is again a constant, so it can be taken out, and hence this I naught square upon T is left as it is into integration from 0 to capital T of this sine square omega t into dt. And just remember that this integration happens to be t by 2. okay, t by 2 होता है ये integration जो है, तो इस इंटीग्रेशन के बदले अगर सॉल्व करके उसको निकालेंगे तो वो believe me it comes out to be t by 2. you not to solve all these things here. ये पूरा इंटीग्रेशन तुमको सॉल्व करना यहाँ पे फिजिक्स के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है. ओके, it is understood that you are done it in maths very well, and that's why just you can use this result as it is here. And if we just put this integration as t by 2 here, then rest of the things, that is I naught square upon t kept as it is, and this is the value of IRMS square, and hence we can just cancel this t from numerator and denominator here and just be left with this IRMS square, which is equal to I naught square upon 2, which gives us that IRMS simply equal to I naught upon root 2. So this is actually going to be the relationship between the RMS value of current and the peak value of current, which we have already seen it in the last lecture. If you remember, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी लिखा डिराइव किया था, यही उसका रिजल्ट है. इन द सेम वे वी कैन जस्ट टॉक अबाउट दिस आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ आल्सो. ईएमएफ का भी आरएमएस वैल्यू जो है वो ई नॉट बाय रूट 2 के बराबर मिलने वाला है, बिल्कुल. और उसकी वजह से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ई आर एम एस विल एक्चुअली बी इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2. रिमेंबर, तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी जस्ट सपोज दैट द ई नॉट वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना कि अगर एसी के बारे में, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में कभी भी पीक वैल्यूज नहीं देते हैं, उसके बदले क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यूज ही देते हैं यात्रिक से. क्योंकि अगर सपोज हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर या एमीटर अगर जोड़ देंगे, कोई भी एमीटर यहाँ पे अगर जोड़ देंगे करंट मेजर करने के लिए, तो ये एमीटर है सपोज. अब ये एमीटर एक्चुअली एसी करंट मेजर करने के लिए जो एमीटर बनता है वो अलग होता है, ठीक है, उसको एसी एमीटर बोलते हैं. लेकिन डीसी करंट मेजर करने के लिए जो एमीटर बनाया जाता है वो अलग हुआ करता है. तो याद रखो ठीक से, दिस इज द डीसी एमीटर, ओके, एंड दिस इज द एसी एमीटर. अभी डीसी एमीटर और एसी एमीटर में क्या फर्क है? डीसी एमीटर के अंदर जितना भी करंट फ्लो होने वाला है वो मेजर करता है. उसका प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी देखा है मूविंग चार्जेस और मूविंग करंट्स के अंदर. बट इसके अंदर सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि जितना करंट फ्लो होगा उतना वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल. लेकिन ये जो एमीटर है वो एसी के अंदर कभी नहीं चलेगा. एसी के अंदर यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि
AC के अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स रिवर्स्ड, not only direction but the value also, the instantaneous value of the current also goes on changing from time to time. It is different at different instants, and that's why this pointer will have to just deflect instantaneously. हर instant पे वो deflect होना जरूरी है, but this is not possible because अगर वो एक सेकंड में 50 बार अगर डिफ्लेक्ट होगा आगे पीछे, तो हमको वो कुछ भी दिखने वाला एक तो नहीं है, और उसकी वजह से देयर आर चांसेस दैट एमिटर विल गेट जस्ट डैमेज्ड. And in order to avoid this all these things, we use another emitter, another emitter which is based on the concept that the equation of heat वो काउंट करता है, हीट को रेफरेंस में लेता है. जितना ये एसी करंट हीट पैदा कर रहा है किसी फिक्स टाइम के अंदर, उतना ही हीट पैदा करने वाला जो फिक्स्ड करंट है, कांस्टेंट करंट जो है, वही वो मेजर करेगा. इसका मतलब इन शॉर्ट व्हाट डज दिस एमिटर विल मेजर हियर इज आरएमएस करंट. ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं कि इस वायर के अंदर एसी सपोज 5 एम्पियर का एसी फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर एसी करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट डज दिस मीन विद इन 5 एम्पियर? ये 5 एम्पियर कौन सा करंट है एक्चुअली? इट्स आरएमएस करंट. ठीक है ना, व्हेनेवर वी से अनलेस इट इज until it is mentioned that it is a peak current or maximum value of current, we have to by default accept it as a RMS current. ठीक है, तो RMS करंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो से. And now the resistance of an AC circuit. See here, जैसे हमने कल ही देखा था कि whenever alternating current or source of alternating voltage is connected to an resistor, the current that is produced in that case is also an alternating one. So consider करो कि एक alternating source है, करंट का सोर्स है, और ये हमने एक रेजिस्टर के साथ जोड़ दिया. ठीक है, ये हमने जोड़ दिया. तो जैसे ही वो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पे ईएमएफ जो बन रहा है यहाँ पे, तो वो बन रहा है E = E0 sin ओमेगा t. नो डाउट ये है ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट. बट द करंट दैट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट एट एनी इंस्टेंट I can also be obtained by Ohm's law. That is, current is equal to potential difference upon resistance. So potential difference is E upon resistance is constant, that is R, and that's why we can just get this I is equal to E by R as Ohm's law. But if we just find it out, E how much it is, so it becomes E0 sin omega t, and that is divided by R, so that we can just get that this E0 upon R can be taken as a constant, and this will be multiplied with sin omega t, and this E0 upon R happens to be the maximum value of this current, right? And that's why we can just denote it by I0 and just get this equation modified as I is equal to I0 sin omega t. Now अब देखो यहाँ पे इन केस ऑफ एसी सोर्स, एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ द रेजिस्टेंस इज डिफाइंड? ओम्स लॉ से हमको मिलता है कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. But the problem here is that if we just define this resistance as the instantaneous value of EMF upon instantaneous value of current, then in that case, this definition will not work always, because at some instant EMF becomes zero and current also becomes zero, and the ratio becomes undefined. ठीक है ना, तो 0/0 becomes meaningless, and that's why we cannot define the resistance to be the ratio of the instantaneous value of current and EMF and instantaneous value of current here. So we want to make sure that denominator should not become zero anywhere. तो ये denominator कभी भी zero नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वांटिटी वहां पे हमको इंट्रोड्यूस करना होगा, तो उसके फॉर्म में इस रेजिस्टेंस को हमको डिफाइन करना होगा. So we can just define the resistance instead of this. ये wrong definition है रेजिस्टेंस का. This is not the definition of resistance in AC. Okay, AC के अंदर रेजिस्टेंस डिफाइन किया जाता है as the ratio of RMS value of current EMF to the RMS value of EMF. Remember, तो यहाँ पे RMS EMF upon RMS current, ये जो रेशियो बनता है, इस रेशियो को हमको बोलना है रेजिस्टेंस. But if we just think about here that ERMS is actually going to be E0 upon √2, correct? And also we have proved that IRMS is actually equal to I0 upon √2, right? So if we just put these values here, then resistance का और एक नया फॉर्मूला हमको मिल जाता है,
जो कि सिंपली ई नॉट बाय रूट टू डिवाइडेड बाय आई नॉट बाय रूट टू, करेक्ट है. So I naught by root 2, and then just root 2 gets cancelled, and we'll be left with this resistance simply to be equal to E naught upon I naught. That is the peak value of current, sorry, peak value of EMF upon peak value of current. So the resistance can be expressed in terms of the peak values, but it is defined to be the ratio of RMS values of EMF and current, obviously. Okay, so this is actually the definition of EMF and resistance, definition of resistance in AC. Okay, it is defined as the ratio of RMS value of EMF to the RMS value of current. RMS values का रेशियो जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहलाता है, ना कि पीक वैल्यूज का, ना कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का. भले अभी इट इज अ कोइंसिडेंस दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का जो रेशियो है वो ईएमएफ और करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का रेशियो भी आर के बराबर ही आता है, except that when I and E are not zero. Okay, तो और EMF पीक वैल्यूज का जो रेशियो है, पीक वैल्यू ऑफ EMF अपॉन पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये जो रेशियो है वो भी रेजिस्टेंस ही आता है. दैट इज अ कोइंसिडेंस, but that is not the definition. Again, you have to understand that this is not the definition. Definition is this here. So the correct definition of resistance in AC is the RMS value of EMF upon RMS value of current. Okay, now we'll just talk about the phasor diagram of this. phasor diagram मतलब क्या कि देखो अभी ये जो EMF है, EMF is equal to E naught sin ओमेगा t, करेक्ट है. आई करंट क्या है यहाँ पे, I naught sin ओमेगा t है. तो ये दोनों जो है, these two can also be thought of as a projections of a vector of magnitude E naught on x axis or y axis. Okay, for example, see, if suppose we have this x axis and y axis plotted here, and suppose that there is a vector of magnitude E naught. Okay, ये E naught magnitude वाला एक vector है, ठीक है, and this vector is making an angle of omega t with the positive direction of x axis. Okay, then we can just take the projection of this vector along this y axis and call this vector simply to be as E, because this E is actually going to be equal to E naught into sin omega t. Just check, क्योंकि देखो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में तो ये कितना बनेगा हमारा, ये जो कंपोनेंट है तो वो एक्चुअली बनेगा E naught into cos omega t. Just wait a minute. Okay, sorry for the delay. Yes, so this is the phasor. phasor मतलब क्या होता है, देखो ठीक से, ये E equal to E naught sin omega t. तो E naught sin omega t can be considered as a projection of a vector of magnitude E naught. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे अभी यहाँ पे सपोज ये E naught वाला वेक्टर जो है, E naught मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, और वो सपोज x एक्सिस के साथ अगर ओमेगा टी इतना एंगल कर रहा है, तो इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं. उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो बनेगा एक्चुअली E naught cos ओमेगा टी, करेक्ट है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो बनेगा एक्चुअली E naught sin ओमेगा टी. यस, so this vertical component here can be considered as a value of E here, that is the instantaneous value of EMF. So we can call it as E. This is nothing. Okay, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये कोई दूसरा component है, but it's of no use. But we are interested in this component here, which is perpendicular component it's called, ठीक है, और vertical component we can say. तो इस तरह से every vector, every means instantaneous value of current or EMF can actually always be considered as the vertical component of a vector of magnitude of peak value and inclined at an angle omega t with the x axis. Okay, so in the same way here, if this current को अगर हमको एक्सप्रेस करना है एज अ कंपोनेंट, तो उसमें भी वही ऑप्शन हमारे पास है कि ये जो I naught इस मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है सपोज, जो कि ओमेगा टी इतना ही एंगल कर रहा है, तो
तो फिर ये आई नॉट वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है, तो ये बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड हियर वी कैन कॉल दिस कंपोनेंट एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस करंट. Forget about this other component, it's nothing, but this first component here, that is I naught sin omega t, will actually be the instantaneous value of current at any instant, remember. And if we just draw this both of these vectors on the same graph paper, तो अगर ये जो दोनों वेक्टर्स है, तो वो अगर हम एक ही ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करते हैं, तो देखो हमको क्या मिलेगा. So suppose this is the x axis, y axis, x axis, and suppose this is the vector of magnitude I naught, and in the same direction there is another vector of magnitude E naught, correct hai? And both of these vectors are making the same angle, that is omega t, with this x axis, and that's why we can say that this E naught and I naught, both of these current and EMF, both are in same phase, ऐसा इसको बोला जाता है. ओमेगा टी उसका एंगल सेम है, इसलिए उसको हम बोलेंगे इनका एंगल सेम है, मतलब ये सेम फेज में है. इसका जो प्रोजेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो वो बनेगा आई, और इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो वो बनेगा ई, करेक्ट है. तो वी कैन जस्ट सपोज दिस आई एंड ई टू बी द प्रोजेक्शंस ऑफ दिस आई नॉट एंड ई नॉट along the y axis, where I naught and E naught both are making an angle of omega t with this x axis here, remember. So this is all about the phasor. Okay, चलो ठीक है. सो यहाँ तक कुछ आपको अगर पूछना है तो, डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से. यस, ओके, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. And one more thing,